Hello everyone. Let's continue with the second chapter. The second chapter name is the component of the food. We know about what is the component. I think so. What is the component? तो इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में हम देखा था कि हमने इंग्रेडिएंट्स लिए थे कुछ फूड आइटम्स के. तो कुछ फूड आइटम्स जो हम बनाते हैं उसके हमने इंग्रेडिएंट्स लिए थे. सो दैट इज ओनली कॉल्ड द कंपोनेंट. Let's start with the chapter. So in chapter 1 we made list of the food items that we eat. We also identified the food item eaten in a different part of India and marked this on its map. So this all things we have done in the chapter 1. A meal could consist of a chapati, dal and a brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetables. Preparation of the lady finger means bhindi. Yet another meal could be upon fish curry and vegetables. Let's start with the activity 1. Our meal usually have the list one item made of some kind of grains. Other items could be a dal or dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, butter, milk, pickles. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select the food items you displayed on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter the is in table 2.1. So as you can see in the table 2.1, some common meal of different region or state. ये तो कॉमन खाना है जो अलग अलग स्टेट का मेनली कॉमन खाना होता है. So in the first column you can see that it's a region. Second column it's item of grain. Third it's for the item of dal or meat. Fourth one is for the vegetables and fifth one for other. So extra what we eat. First is Punjab. So it's a मक्की रोटी. So वो कौन की रोटी होती है. उसमें दाल में राजमा होता है, किंडी बीन्स. वेजिटेबल्स में सरसों से साग, मस्टर्ड लीफ करी होती है. मस्टर्ड की जो वेजिटेबल्स आती है उसकी सब्ज़ी होती है और उसके साथ घी या फिर दही होता है. आंध्र प्रदेश में मेन आइटम में राइस होती है. देन आफ्टर तुअर दाल एंड रसम. देन कुंदरू एंड देन आफ्टर अदर में वो बटर मिल्क, घी या फिर पिकल होता है. देन आफ्टर नेक्स्ट इज द ब्लैंक रो. सो इन दैट ब्लैंक रो यू हैव टू राइट ऑफ द गुजरात. गुजरात में क्या होता है. Sometimes we may not really have the all variety in our meal. If we are traveling, we may eat whatever is available in our way. So it is not possible in all time हमें जो चाहिए वही हमें खाने में मिले. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. There must be some reason through why meal usually consists of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? So क्या आपको ये लगता है कि हमें स्पेशल मीन्स कि कुछ अलग टाइप का ही खाना चाहिए. रोज़ एक का एक खाना अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. Daily we need to eat different kind of food. So do you think that? Okay, so to find the answer of that, let's continue. Next topic which 2.1. What do different food items contain?
We know that each dish is usually made up for one or more ingredients which we get from the plants or animals. है ना, इसके बारे में तो हमें पता है कि एक डिश जो होती है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनती है जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं. This ingredients contain some components that are needed by our body. ये जो ingredients है उसमें कुछ components होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं to function well. These components are called nutrients. ये components को क्या बोलते हैं? Nutrients बोलते हैं. The major nutrients in our body are named carbohydrate, protein, fats, vitamin and minerals. In addition, food contains dietary fiber and water which are also needed by our body. So ये हमारे मेनली न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को चाहिए, जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. इन एडिशन इट इज़ अ डाइटरी फाइबर एंड वाटर इज ऑल्सो. डू ऑल फूड कंटेन्स दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या सारे के सारे फूड में ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नहीं होते हैं. विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. The test for a presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to the test of other nutrients. So इसमें से बोला है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स की जो प्रेजेंस है उसकी जो टेस्ट है वो सिंपल है एज कंपेयर टू दूसरे मटेरियल की. Let us do this test and record all the observation in table 2.2. So as you can see over here is the table at the down. So in this table we'll write all the measures. For carrying out this test you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda. We will also need a few test tube and droppers. So these are the things that you need to perform the test. Try this test on a cooked food items as well as raw material. So जो cooked food items जो हमने बनाई हुई items है उसमें भी try करना है और जो raw material है उसमें भी try करना है. Table 2.2 shows you a way to record the observation from this test. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with this or any other available food. So as you can see in the table 2.2 there is a given some food items. So ये सारी food items लेके भी आप टेस्ट कर सकते हो और अगर आपको कोई अलग आइटम्स लेनी है तो उसमें भी टेस्ट कर सकते हो. Do this test carefully and do not try to eat or test any chemicals. So there is a kind of precaution that you have to need. Then right now we are not doing that kind of test, but when we'll open that school then we'll try to do this test. If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. There are many types of carbohydrate. The main carbohydrate found in our body are the form of starch and sugar. So mainly दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं. First one is the starch and another one is the sugar. We can easily test if a food items contain starch. हम easily test कर सकते हैं अगर food items में starch हो तो. So here in the yellow box it is given all the solution details. You can read it for your purpose. Next is activity
2, which is for the test for the starch. Take a small quantity of food items or raw ingredients. Put 2-3 drops of diluted iodine solution on it, as you can see in the figure 2.1. सो यहाँ पे हमें क्या लेना है, कोई भी एक फूड आइटम लेनी है या फिर रो इंग्रेडिएंट्स लेना है जो कुकड हो, या फिर इन रो इंग्रेडिएंट्स भी चलेगा. सो उसमें 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन, डिल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन के डालने हैं. ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि वो फूड आइटम जो है उसमें कोई कलर चेंज हुआ कि नहीं. डिड इट टर्न ब्लू, ब्लैक, उसमें कलर चेंज हुआ, आइदर इट्स मे बी ब्लू और ब्लैक. अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च. अगर उसका कलर ब्लूइश ब्लैक हुआ तो उसमें स्टार्च है, ये हम बोल सकते हैं. रिपीट दिस स्टेट विथ अनदर फूड आइटम to find out which of this contains starch. Enter your observation in table 2.1. So as you can see in the table 2.1, there is a different type of table is a presence of the starch, protein and fats. वो किस किस आइटम में है कि नहीं है वो इसमें हमें एंटर करना है. सो फर्स्ट वी आर कंडक्टिंग फॉर द स्टार्च. तो यहाँ पे आप अलग अलग मटेरियल्स आप देख सकते हो, अलग अलग फूड आइटम्स है. सो इसमें हम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉर द टेस्ट ऑफ प्रोटीन. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग. इफ द food you want to test is solid, you first need to make a paste of it or powder it. तो अगर आप कोई प्रोटीन की टेस्ट के लिए अगर आपके पास जो फूड आइटम है अगर वो सॉलिड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा या फिर उसका पाउडर फॉर्म करना पड़ेगा. ग्राइंड और मास क्वालिटी अ फूड आइटम. आइदर यू कैन ग्राइंड इट और पाउडर इट और पेस्ट इट. पुट सम ऑफ द दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है वो पेस्ट या पाउडर को. एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. 10 ड्रॉप्स उस वाटर के डालने हैं और उसके बाद उसको शेक करना है. ना यूजिंग अ ड्रॉपर. अभी ड्रॉपर की मदद से क्या करना है, एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप्स उसमें डालने हैं. एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा के डालने हैं टू द टेस्ट ट्यूब, एज यू कैन सी इन द फिगर 2.2. सो हियर इस तरह का ड्रॉपर होता है, ये ट्यूब है. पहले हमें कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप्स डालने हैं और उसके बाद उसी सॉल्यूशन में कॉस्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स डालने हैं. उसके बाद क्या करना है, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स. उसके बाद उसको शेक करना है और टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही थोड़ी देर रहने देना है. What did you see? Did the content of the test tube turn violet? अगर जो कंटेंट उसमें है टेस्ट ट्यूब में अगर वो उसका कलर टर्न होकर वायलेट हो जाता है. वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन. वायलेट कलर क्या इंडिकेट करता है कि फूड आइटम्स में प्रोटीन इंडिकेट करता है. Now you can repeat this test on another food item. So अगर आप एक आइटम का अगर टेस्ट आपने कंडक्ट कर लिया है तो बाकी सारे आइटम्स है उसमें भी आप प्रोटीन का टेस्ट, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं वो आप टेस्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इफ वी सी टेस्ट फॉर द फैट्स. तो नेक्स्ट टेस्ट क्या है कि जो फूड आइटम है उसमें फैट्स है कि नहीं. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, warp it and a piece of paper and crush it. आपको क्या करना है, थोड़ी क्वांटिटी में कोई भी फूड आइटम्स लेनी है, उसको एक पेपर के पीस में वर्प कर देना है और क्रश कर देना है. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. उसका भी ध्यान रखना है कि इतना भी आपको क्रश नहीं करना है जिसकी वजह से वो पेपर जो है वो फट जाए. नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. उसके बाद क्या करना है, वो पेपर को आपको खोल देना है, ऊपर रखना है और ठीक से देखना है. डज इट हैव एनी ऑयली पेज. तो उसमें आपको देखना है कि क्या उसमें ऑयली पेज मीन्स निशान हो गए हैं ऑयल के. होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट. अगर ठीक से ना देखे तो आपको क्या करना है, आइदर इट्स ऑन सनलाइट या फिर ट्यूबलाइट के ऊपर
उस साइड रख के देखना है कि उसमें कुछ ऑयली फेस है कि नहीं, या फिर आपको उसमें से लाइट पास होती पार्शियली पास होती दिख रही है कि नहीं। आर यू एबल टू सी लाइट फेंटली थ्रू दिस पेज? एन ऑयली पेज ऑन अ पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट। तो ये अगर वो उस पेपर में ऑयली पेज होंगे तो आप उसमें बोल सकते हो कि वो ऑयली पेज जो है वो फूड कंटेन करते हैं। सो दैट मीन्स कि वो फूड आइटम्स जो हमने ली है उसके अंदर फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटल वाटर, उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी हो सकता है। Therefore, after you rub the item on a paper, let paper dry for a while. सो उसकी वजह से आपकी टेस्ट भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें प्रॉपर रिजल्ट ना मिले। तो क्या कर सकते हो आपकी जब आप रब कर लो उसके बाद आपको पेपर को थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए रख देना है। देन आफ्टर यू परफॉर्म दैट टेस्ट। Let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from the food, it would be dry up after some time. थोड़े टाइम के बाद वो ड्राई हो जाएगा। If no oil patch shows up after this, उसके बाद भी अगर आपको ऑयल पैच ना देखें, then that food item does not contain any fat. तो it means that कि उस food items में कुछ भी fats नहीं है। What do this test shows? ये टेस्ट क्या शोज करती है? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? डज द फूड आइटम्स कंटेन्स मोर देन न्यूट्रिएंट्स? डिड यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? सो इसके बाद हमें ये पता चलेगा कि अगर हम ये सारी टेस्ट कर लें तो कुछ फूड आइटम्स में हमें ये पता चलेगा कि उसमें हाँ एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे, कुछ में एक ही मिलेगा, कुछ में एक भी नहीं मिलेगा। We tested food items for 3 nutrients: carbohydrate, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? तो और दो न्यूट्रिएंट्स भी है जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स। देन उसकी भी टेस्ट भी हम करेंगे कि वो भी अलग अलग फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। बट हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्यों? What do various nutrients do for our body? तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट्स भी हमारी बॉडी को क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव अस much more energy as compared to the same amount of the carbohydrate. Then फैट्स क्या करते हैं? हमको सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की जगह पर उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फूड कंटेन्स फैट, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जिस फूड में हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों मिले उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर आवर ग्रोथ इन रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स में हमारी बॉडी को क्या करते हैं? वो अगर प्रोटीन्स होगा तो हमारी ग्रोथ प्रॉपरली होगी एंड हमारी बॉडी में रिपेयर प्रॉपरली होगी। फूड प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड दैट कंटेन्स प्रोटीन उसको क्या बोलते हैं? हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। एज यू कैन सी इन फिगर 2.5। तो 2.5 में आप देख रहे हो कि अलग अलग टाइप के हैं फूड्स। देखो ये ग्राम, मग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पिया। ये सारे फूड्स जो है वो हमें प्लांट्स में से मिलते हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। और जो एनिमल सोर्सेस है वो कौन से हैं? मीट, फिश, पनीर एंड एग्स और मिल्क। तो ये सारे जो है उसमें से भी हमें प्रोटीन ही मिलता है, बट ये एनिमल सोर्स है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन्स हमें क्या हेल्प करते हैं? जो बाहर से हमें डिजीज़ आते हैं
को प्रोटेक्ट करने के लिए. विटामिन्स आर ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम. विटामिन्स में भी अलग अलग पार्ट्स हैं जिसके अलग अलग नाम्स हैं. सम ऑफ दिस आर विटामिन्स ए, सी, डी, ई एंड के. There are also groups of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all type of vitamins in small quantity. हमारी बॉडी को ये सारे टाइप से विटामिन चाहिए बट वो स्मॉल क्वांटिटी. विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्दी. विटामिन ए का काम क्या है? हमारी स्किन जो है और हमारी आइज है उसको हेल्दी रखना. विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट. विटामिन सी का काम क्या है? हमारी बॉडी को फाइट मीन्स अलग अलग डिजीज से फाइट रखना. विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. विटामिन डी का काम क्या है? हमारे बोन्स जो है उसमें और हमारे टीथ में कैल्शियम का बैलेंस रखना. फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9. So as you can see in the figure 2.6 to 2.9, these are the figures. 2.6 is about some source of vitamin A. So source of vitamin A is papaya, carrot, mango, fish oil and milk. So ये सारे source है vitamin A के. 2.7 is about source of vitamin B, which are wheat, rice and liver. It means meat. Next 2.8 is a source of vitamin C, which are all the kind of citrus fruits, just like orange, guava, green chili, lemon, amla and tomatoes. Figure 2.9 is about source of vitamin D. It includes fish, eggs, liver, butter, and milk. Minerals are needed by our body in small amounts. मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं. ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. बट ये भी हमें प्रॉपर चाहिए होते हैं बिकॉज हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल आर शोन इन फिगर 2.10. सो एज यू कैन सी इन द फिगर 2.10, सो ये सारे सोर्स हैं मिनरल्स के. ये सारे मिनरल्स हैं. ये मिनरल्स सम सोर्स ऑफ आयोडीन. ये आयोडीन जो मिनरल्स है उसके सोर्स है. Then after a source of phosphorus, milk, as you can see, milk, wheat, banana, green chili, rice. Then after it is of a source of iron, apple is there. Then after some source of calcium, milk, eggs. So these are all the source of the minerals. Most food items usually have more than one nutrients. सो मोस्टली सारी जो फूड आइटम्स है उसमें एक से ज़्यादा तो न्यूट्रिएंट्स होते ही है. यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. अगर आपने टेबल 2.2 का ऑब्जर्वेशन अगर देखा होगा ठीक से, या फिर अगर आप इसमें ये फिगर्स आप देखें सारे के सारे, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि एक फूड आइटम उसमें हमने बहुत सारे मिनरल्स हमने देखे हैं, न्यूट्रिएंट्स, जिसमें से एक में से हमें प्रोटीन्स भी मिलता है. मिल्क देखो, मिल्क बहुत सारे में है. दैन आफ्टर एज यू कैन सी एग्स, वो भी बहुत सारे में मिलता है. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in a much larger quantity than other. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. तो राइस में क्या है? राइस में बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है बाकी सारे अदर दूसरे न्यूट्रिएंट्स के अलावा. Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food. Besides this nutrients, our body needs dietary fiber and water.
ये सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर एंड वाटर भी चाहिए। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफ एज। डाइटरी फाइबर को हम रफ एज भी बोलते हैं। रफ एज किसको बोलते हैं? रफ एज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स plant product in our food, whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits, vegetables are main source of roughage. Roughage does not provide any nutrients to our body. वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, बट इट इज़ एन essential component to our body and adds to its bulk. This help our body to get rid of अनडाइजेस्टेड फूड। तो उसका मेनली यूज़ क्या है? जो हमारी बॉडी में अनपचा खाना होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको में निकालने के लिए डाइटरी फाइबर और वाटर का यूज़ होता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। It also help in throwing out some waste from body as urine and sweat. Normally we get most of water that our body needs from the liquid we drink, such as water, milk and tea. In addition we add water to most cooked food. Cooked food होता है, उसमें भी water present होता है mostly. Let's see if there is any other source which provide water to our body. So for that we have to take activity 3. Take a tomato or a fruit like lemon, cut into small piece. Do your hand get wet while doing so? तो जब हम कोई भी फ्रूट्स होते हैं या फिर वेजिटेबल्स का होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो है, लेमन है, ये सारे में अगर हम जब कट करते हैं तो हमारे हैंड्स जो होते हैं वाइल वी आर कटिंग दैट, तो वो क्या होता है, थोड़े बहुत वेट हो जाते हैं। सो ये क्या बताता है? ये बोलते हैं कि ये प्रेजेंस ऑफ द वाटर इज कंटेन ऑन दैम। Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? We see that many food materials themselves contain water to some extent. कुछ एक्सटेंट में तो उसमें वाटर प्रेजेंट होता ही है। आवर बॉडी नीड्स आर met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food. And so this is activity for about कुछ फूड आइटम्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके लिए। देन आफ्टर इट इज़ फॉर बैलेंस डाइट। तो जो हम खाना खाते हैं तो वो कौन से टाइप का खाना कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। द फूड वी नॉर्मली ईट इन आवर डे इज़ आवर डाइट। जो नॉर्मली हम खाना खाते हैं वो हमारा डाइट होता है। बट बैलेंस डाइट को किसको बोलते हैं? फॉर द ग्रोथ and maintenance of our good health, our diet should be have all the nutrients that our body needs in a right quantity, not too much of one and not too much of others. The diet should also contains good amount of roughage and water. Such diet is called a बैलेंस डाइट। तो ऐसे डाइट को क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, वो भी राइट क्वांटिटी में। कोई भी एक ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कोई कम भी नहीं होने चाहिए, और उसमें रफेज भी होना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में और वाटर भी होना चाहिए। तो इस टाइप के डाइट को क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड सेम टाइप ऑफ डाइट? तो क्या आपको ये लगता है कि अलग सारे पीपल्स को सेम टाइप के डाइट्स होने चाहिए? आप जो खा रहे हो उस वही डाइट आपकी मॉम या फिर आपके फादर भी खाने चाहिए? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend amount of the physical work that we do.
प्रिपेयर अ चार्ट वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। तो एक वीक के लिए ऑब्जर्व करके आप एक चार्ट बनाओ जिसमें आप पूरे वीक में जो जो खा रहे हो वो आप मेंशन करो। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो वो चेक करो कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स है वो आपको बॉडी को मिल रहा है कौन से आइटम खाने से। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स में आप मग दाल जो होती है वो भी लिख सकते हो, बंगाल ग्राम्स दोनों। फ्रेगमेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, combination of flours, misty roti, thepla made from the cereals or pulses, banana, spinach, sattu, jaggery. Available vegetables and other such food provided many nutrients, therefore one can eat a balanced diet without expensive food materials. सो बहुत ही एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स, बहुत ही एक्सपेंसिव फ्रूट्स हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सारे मटेरियल्स जो आप अवेलेबल है उसमें से भी आपको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। तो राइट टाइप्स ऑफ फूड भी अगर हम खाते हैं तो भी वो इनफ नहीं है। वाई? बिकॉज समटाइम्स अगर हम वो जो फूड होता है या फिर अगर वो प्रॉपरली कुक ना किया हो या फिर वो ओवर कुक हो गया तो उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो लॉस हो जाते हैं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? डन। सो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अगर जो फूड होता है अगर वो ओवर कुक हो जाता है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होता है, लॉस हो जाते हैं। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in lose some vitamins. वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में ऐसा होता है, अगर उसको हम पीलिंग करें या फिर कटिंग करें तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर कुछ विटामिन्स होते हैं वो चले जाते हैं। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसकी जो स्किन्स होती है वो उसके अंदर ही विटामिन्स और मिनरल्स होती हैं, अगर हम उसको निकाल देंगे तो वो निकल जाएंगे। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। नन तो राइस या फिर पल्सेस को अगर हम बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट पे वॉश करेंगे तो उसके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स है वो भी चले जाएंगे। We all know that cooking improves the taste of the food and make it easier to digest. So हमें वो पता है कि अगर हम कुकिंग करेंगे तो वो हमें पसंद भी आएगा वो फूड और इजी भी होगा डाइजेस्ट में। At the same time, cooking also result in a loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost in excess. Water is used during cooking and is then thrown away. Vitamin C get easily destroyed by heating during cooking. Would it not be sensible to include some fruit and raw vegetables in our diet? सो विटामिन सी जो है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम उसको हीट करते हैं ड्यूरिंग द कुकिंग। Bojo thought that the fat would be the best food to eat. All the time katori जो होती है bowl of a fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fat. Fried food like samosa and puri, malai, rabdi and peda. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich food items, and
we end up suffering from a condition called obesity. Obesity is a type of condition which when our fat means हमारा जो स्टमक होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है. एंड ओबेसिटी इज़ अ काइंड ऑफ कंडीशन व्हेन जो डाइजेशन जो होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है. सो हमें बहुत ही ज़्यादा कंटेंट वाला जो फैट वाला जो कंटेंट होता है वो हमें नॉर्मली हमें इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज 2.4 deficiency disease. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. If this continue over a long period of time, the deficiency person may suffer from its deficiency. So इसमें इस तरह से हो सकता है कि अगर एक पर्सन जो होता है वो उसको एक टाइप का फूड ही मेनली खाता है तो उसमें से उसके जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसमें से एक न्यूट्रिएंट्स या फिर दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उसको नहीं मिल पाते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो न्यूट्रिएंट्स उसके बॉडी में कम हो जाते हैं. तो उसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है उसकी बॉडी में. डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी. तो उस न्यूट्रिएंट्स का जो वर्क होता है हमारी बॉडी में वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा. इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी. तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ आ जाते हैं. डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड अ डिफिशियंसी डिजीज़. तो इस टाइप के जो डिजीज़ आते हैं जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी की वजह से होते हैं उसको डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं. इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ही और शी इज़ लाइकली टू हैव अ स्टंट ग्रोथ, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. So this type of disease may be that person get if the person does not get a protein in a proper content. If the diet is deficiency in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop. तो उसकी क्या हो जाती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है अगर उसको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों नहीं मिलता है. Such a person become very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. तो वो इतना ज़्यादा वीक हो जाता है तो मे बी उसको वो मूव करने में भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorder. So vitamins और minerals की deficiency से भी disease हो सकते हैं. Some of these are mentioned in table 2.3. All the deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet. सारे के सारे deficiency disease जो है जो हम टेबल 2.3 में देखेंगे वो सारे के सारे balanced diet से ठीक हो सकते हैं. In this chapter we ask ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensure that our meal have a balance of the different nutrients needed by our body. So इसमें इस तरह से बोला है कि अलग अलग स्टेट में जो फूड है उसका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है जिसमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं. सो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमें एक फूड में से नहीं मिल सकते. सो हमें अलग अलग टाइप के फूड खाने पड़ते हैं. And now we'll see the table 2.3. On that, as you can see in the first column, it is a vitamin or minerals. Next, it is a deficiency disorder or deficiency disease. Then after it is a symptoms जो अगर उस टाइप का डिसऑर्डर या फिर डिजीज़ होता है तो क्या होता है. सो फर्स्ट इज़ विटामिन ए. तो विटामिन ए की डिफिशिएंसी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन मीन्स देख नहीं पाते हम, ब्लाइंडनेस आ जाती है. पुअर उसके सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस,
मीन्स नाइट में हमें दिखता नहीं है. समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. विटामिन B1 जिससे क्या होता है बेरी. इट्स अ टाइप ऑफ डिजीज़ बेरी. सिम्टम्स उसके क्या है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क. बहुत ही कम एनर्जी रहती है वर्क करने के लिए. हमारे जो मसल्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ विटामिन C जिससे क्या होते हैं, डिजीज़ नेम इज़ स्कर्वी. ब्लीडिंग गम्स. वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील. तो उससे क्या होता है, जो हमारी हीलिंग पावर है वो बहुत कम हो जाती है. अगर हमें कहीं पे लगा होता है तो वो बहुत ही टाइम लेता है हील करने के लिए. हमारे गम्स है वो उसमें से ब्लीड हो जाता है. दैन आफ्टर इट्स विटामिन D जिससे क्या होता है, इट्स डिजीज नेम इज रिकेट्स. बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड. हमारे बोन्स जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं. दैन इट इज़ अ कैल्शियम. कैल्शियम से क्या होता है, बोन एंड टूथ डीके. वीक बोन एंड टूथ डीके. हमारे दांत टूटने लगते हैं, हमारे बोन्स बहुत वीक हो जाते हैं. नेक्स्ट इज ऑफ द आयोडीन. आयोडीन की डिफिशिएंसी से क्या होता है, इट्स डिजीज नेम इज गोइट्री. goiter. The gland in the neck appear swollen. मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन. तो हमारे जो नेक के पास जो ग्लैंड होती है वो स्वोलन हो जाती है, मीन्स वो बड़ी हो जाती है. और चिल्ड्रन में क्या होती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है. नेक्स्ट इज ऑफ द आयरन. तो आयरन में क्या होता है, एनीमिया होता है. तो उससे क्या होता है, इसके सिम्टम्स है बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं, वीकनेस लगती है हमें. सो दिस इज फॉर द चैप्टर नंबर 2. So here is keywords, and so you can do it by yourself. Then after it's a summary. The exercise we'll do in the next video. Thank you.